Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting lecture number 14, and today we'll discuss some standard forms today, like canonical form, right? And you'll see now the Boolean expression can be changed in different forms, and we have to really learn all those forms so that whatever required form is given, you can do that. Okay, have you tried those your turn questions? 2 questions last lecture. How many people tried? 1, 2. नहीं बेटे वो करना है आपको साथ साथ देखें साथ साथ करेंगे तो चीज़ें चलेंगी अदरवाइज आपके लिए खुद मुश्किल होती जाएगी क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम की ओनली द एसेंस इज स्टडी डेली मे बी 2 आवर्स 1 आवर लेकिन एक आपका फिक्स टाइम होना चाहिए जहाँ आप बाकी दुनिया से कट ऑफ होकर काम करें बाकी सारा वक्त 24 घंटे हैं आप जो मर्जी करते हैं वो फिक्स टाइम जब तक नहीं करेंगे यू विल नेवर बी सक्सेसफुल बेशक कितने जीनियस हो आप ठीक है so that is necessary. Okay, let's quickly overview the last lecture. So we said last time that whatever Boolean expressions are there we can implement them, right? Implementation means we realize with logic gates, right? And then we said that minimization of function helps in reduction of the circuit. And we basically employed a method which was algebraic manipulations. So that was the first method you have learned how to reduce a Boolean function using algebraic manipulations, algebraic theorems and postulates. And later on you will learn how to reduce it another 2 methods, right? One is called tabulation method or Carnot map, right? And the other is, one is Carnot map and other is tabulation method, right? Which later on is a computer-based method where number of variables becomes very, very large, right? So there the computer algorithm will learn basically how a computer does the algebraic manipulation and minimization. And lastly, we saw how to take the complement, right? And then we did practice some of the Boolean function and try to reduce it using postulate and theorems. So today we'll talk about the canonical forms. So what is canonical form? A canonical form is a standard form. So now we want to represent a Boolean function in different forms. Right? Like this is one form which is called the canonical form, right? And that's the standard way of representing things. So we'll study standard forms or standard methods, right? And in one of the standard method is canonical, right? Okay, and there are 2 canonical forms used, right? One is called sum of minterms. So we learn the concept of minterms, and then we'll see how minterms are summed together, and then we learn the max terms, product of max terms, right? And these 2 basically form the canonical forms. So basically, if you look here, if I look at different forms, right? So I'll have a standard form and a non-standard form. अगर इसको मैं देखूं, तो let's say white, चलो white ही ले लें. I have standard forms. Standard forms, right? And non-standard form. ठीक है जी. और non-standard क्या होंगी जो standards पे जो इस category में नहीं आती, definitely they fall in non-standard form, right? So first of all, let's see what is a standard form, right? And out of this, right, we have one is called this canonical form. So canonical form is one of the standard form, and then we'll learn some other standard forms like we'll study sum of products, and there's another standard form which is called product of sums, right? Rather, this canonical form is not under this,
Rather, it is in one of the standard forms here, right? So basically, this canonical form falls under the category of one of these two, right? Like sum of min terms will be sum of product form, basically. Sum of min terms will come here, and product of max term will come here. So we'll see all such forms. So basically, there are four standard forms, right? One is sum of min terms, other is product of max terms. You haven't learned what is max term min term, right? You will learn that. And then we have sum of product form and product of sum form. So ये थोड़ा सा फ्री हैंड पहले से आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि ओवरऑल आपको चारों फॉर्म्स का क्लियर हो, और जो फॉर्म्स इन फॉर्म्स में नहीं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? नॉन स्टैंडर्ड. So let's first look at the sum of min terms and product of max terms. So these forms are some considered as the brute force method of representing the functions, as seldom represent a function in minimized form. So ये मतलब is a standard way of representing things, right? But definitely this representation is not a minimized form. हमने कह रहा था ना function की form है, उसको एक minimized function भी बनाते हैं. So it's not a minimized form. It's a standard form where you represent the function in sum of min terms or product of max terms. So let's first learn what is the concept of min terms and max term. So let's see what is a min term, right? So any given binary variable can be represented in two forms, we said. So any variable, we know that any variable x, right, can have two forms, either 0 or 1. So it's x or x prime, right? So the two forms are x and x prime, right? So we consider two binary variables, and AND operation there form four possible combinations. अगर आपके पास दो variable हैं x, y, right? So how many possible combinations? Four possible combinations. And we know that 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, four possible combinations, and we can represent them in the form of min terms. So let's see how we define the min terms, right? So x, y is a min term. X, y prime is the min term. So the input combination representing in such a variable, right, ANDed together are called min terms. And above all these are AND terms is called a min term or a standard product. चलिए, let's take an example. अच्छा, ये अब min terms का हमने कहा कि if I have n variables, so उसकी possible min terms क्या होंगी? 2 raised to 5. If I have 3 variables, so the possible min terms are 8 possible min terms. So इसको देख लेते हैं. So for example, here I have 2 variables, x and y. So input combinations क्या हो सकती हैं आपकी? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, right? इसके corresponding min terms क्या बनेंगी? Min terms 0, 0 के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ 0 है, उसको prime लिख लेते हैं, right? So x prime, y prime, and we AND together. So this term x prime, y prime is called min term. और उसकी डेजिग्नेशन आगे क्या दे रहे हैं? M0. तो एक फिक्स कर दिया हमने कि जब भी x प्राइम y प्राइम की टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे? M0. okay? और इसी तरह x प्राइम y जो होगी उसको M1 कहेंगे, min term number 1, right? And then we have x y prime which is 1 0 which is min term number 2, right? As the binary numbers are there, so we designate all these min terms. Okay, ये बात समझ में आ गई? And then we'll represent the function, output function, in terms of these min terms. Okay? और हम आगे चल के देखेंगे कि इस min terms की फॉर्म में कैसे. So now you understand the standard way of min term कैसे represent है. So can we represent 3 variables now with the same philosophy? क्या होगा जी? कितनी possible min terms होंगी? 8 possible min terms. और पहली min term M0 क्या होगी इसमें? So wherever is 0, you put a prime and then you AND them, right? That's the philosophy of that's the standard definition of min term. So let's see the 3 variables. So 3 variables min terms will look like this. Okay? So now you understand the
if I give you 4 variables, still you can write down the minterms, right? And we can designate those minterms like M0 to M7. We know the 8 possible ways we can write the inputs, and we can write down the minterms, right? Which are added together, and where there is a 0, there is a prime, there is a 1, there is unprime, right? That's unprime. Okay? No difficulty up till now? Much. So let's now look at max term. So max term is basically the complement of min term. You can consider G bit. G. Y is G prime. X prime, Y is G prime. So basically, हाँ यहाँ पे M5 क्या है? हाँ ये उल्टा हो गया. It should be X, Y prime B. You're right. So that's good. It means you're not asleep, right? So we can correct this, right? So 101 is basically X, Y prime, Z. बाकी भी गड़बड़ है? नहीं बाकी ठीक है, बाकी ठीक है मेरा ख्याल है. सिर्फ एक भी प्रॉब्लम था, वो मे बी कट एंड पेस्ट में कुछ मसला हो गया. या मे बी दिस इज बुक कॉपी, बुक में ही होती है. दैट इज पॉसिबल. But you know the standard representation that when there is a 1, there is that is unprime, if there is a 0, there is prime, and they are ended together. Okay? So जो max term होगी इसके क्या होगा? Opposite होगी. So can I write the max terms? Complement of this क्या होगा? पहली max term क्या आ जाएगी? X or Y or Z plus R. Okay? So इसकी जो पहली max term आ जाएगी वो ये इस तरह आ जाएगी. So any given binary variable can be represented in two forms. We said that we consider two binary variables and OR together. ठीक है. अब two variable की क्या और max terms बनेगी? ये बनेगी. और x और y बेसिकली कौन सी होगी? M0. और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल M से. ठीक है जी. So let's see that. So these are max terms. max terms दूसरा circuit बना देंगे. जी. So we are defining two terms. One is min term, and the same combination earlier was basically primes ended together. Now they are opposite of that. They are all together, and they are opposite. Where there is a 0, that is unprime. When there is a 1, that is prime. Opposite हो गया, complement हो गया. And you will know कि जो max terms हैं, they are complement of min terms. Sir, complement करने से 1 अच्छा 1 और 0 चाहिए. नहीं 1 और 0 चाहिए नहीं. देखिए input combination तो वही रहेगी. Input combination तो वही है. Definition change हो गया. इनसे पहले हमने z को अपने x को डिफाइन किया था 1 से और उसका complement को 0 किया. जी. For min term. Here the definition is different. सर आउटपुट तो सही है. आउटपुट तो अभी हमने बात ही नहीं की. अभी तो आउटपुट की बात ही नहीं की. 1 है 0 है. We have only talked about the input possible combinations. ठीक है ना? ठीक है. 0 to 7. आपकी इंटरफेरेंस आती है. ठीक है जी. You understood this? Now you can write down, let's say 4 variable max terms. Yes sir. 5 variable max terms, 5 variable min terms. ठीक है. तो इशू नहीं, अभी प्रैक्टिस करेंगे. We'll do the practice. अच्छा जी. अच्छा अब देख लेते हैं कि ये basically how we express the output function. तो 2 bit का truth table होता है, हम सबको करते हैं. How we express the output functions. अच्छा अब हमने कहा कि truth table basically जब आप लोगों ने सबमिशन input and output ठीक है तो आप combinations. सारों में करेंगे आप लोग. ठीक है. सर इस 0-1 मैच हो. सर वो पैरिटी. This is analog problem. अगर digital होता तो ये सर पैरिटी डाल. 64 बिट फेल है.
ठीक है जी? अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द आउटपुट फंक्शन. ठीक है जी? आउटपुट फंक्शन में अब आपको गिवन है, ट्रुथ टेबल इज गिवन, एंड नाउ यू वांट टू एक्सप्रेस अ जी फंक्शन व्हिच इज द आउटपुट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मिनटर्म, सम ऑफ मिनटर्म्स. तो आप क्या करेंगे? द ट्रिक इज pick up those minterms where the function is 1. हम कौन सी minterms को pick करेंगे? या function 1 है. Okay? So let's say if I take these 3, तो इसकी minterm क्या हो जाएगी? Arbitrary एक output function दे दिया ना आपको. Any function, मतलब कोई output और input का relationship होगा, ठीक है? So now if I, let's say, अच्छा, so my output is 1 here, output is 1 here, rest all the outputs are 0. So अगर मुझे sum of minterms में लिखना है, क्या अब मैं कौन से function किस में लिख रहा हूँ? Sum of minterms में, sum of minterms, ठीक है जी? और minterms की आप definition आपने सीख ली है, ठीक है? सो इससे एसोसिएटेड मेरी मिन टर्म क्या बनेगी? x प्राइम y z. x प्राइम y z. अच्छा, y. और क्योंकि ये सारे और हैं, या any one, any term gets 1 is 1 basically, right? So we have to OR these min terms. So that's why we are saying sum of min terms. और ये min term क्या होगी जी? x y z प्राइम. और थर्ड वाली जो है एक्स वाई जी. ठीक है जी. नाउ माई जी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड सम ऑफ मिनटर्म्स. ठीक है. अब कोई भी आपको फंक्शन दिया हो 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, तो आपने क्या करना है? जहां 1 है उन मिनटर्म्स को पिक करना है और करके लिखना है. एंड दैट्स द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन इन मिनटर्म्स. हाँ, मैक्स में जहाँ 0 होंगे वो हम पिक करेंगे और उसके इक्विवेलेंट कर देंगे और उनको आपस में और नहीं करेंगे बल्कि प्रोडक्ट करेंगे. सर फंक्शन मतलब वो छोटा हो तो वो भी. हाँ, अभी छोटे की बात नहीं कर रहे हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन. वी सेड इट्स नॉट अ मिनिमाइज्ड फॉर्म, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन वेयर द फंक्शन इज 1 बेसिकली. हमने लैब में ऐसे कुछ किया था डेरिवेशन जिसमें आप लिखेंगे सेम है से डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द जनरली उसका ट्रुथ टेबल बना के उससे आगे जनरेट वो अभी हम यही सीख रहे हैं. आगे चल के हम और भी सीखेंगे. So this is one form. Okay. Wherever the function is 1, pick up those minterms, just OR them, you'll get the function. You'll get a Boolean function. ठीक है जी? तो सही है जी? Understood the concept? At the back जी? बेटे आवाज समझ आ रही है? चलो, good, very good. अच्छा जी, ये चलें जी. इसके आप फंक्शन लिख सकते हैं f1 का. तो मिन टर्म्स ऑलरेडी आपके सामने लिखी हुई हैं. बस उनको और करें, you will get f1. So your f1 becomes this. ठीक है जी? Because the function is 1 at min term number 0, m0, small 0, right? और ये याद रखना कि ये m0 की पे 1 है, right? और कहाँ 1 है? 3 पे 1 है, 4 पे 1. ठीक है? So we have defined and written the function in the standard form, which is called canonical form, in sum of min terms. ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा और आसान करने के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं. Instead of x, y, z, हम सिर्फ नंबर्स दे दें. m0, m1 and m0, m3 and m4, right? या इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि summation का साइन यानी sum of, and then we just write down the numbers, right? So that's the standard way of representing things. और ये आगे चल के हम देखेंगे इस फॉर्म का भी काफी फायदा होगा जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे. तो ये मिन टर्म्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, इट विल हेल्प यू इन इम्प्लीमेंटिंग द सर्किट वेरी इजीली.
ठीक है, अभी सिर्फ हम फॉर्म देख रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन नहीं देख रहे. We are just learning how to write a function in sum of minterms. ठीक है, तो minterms आपने कौन सी पिक की, जहाँ फंक्शन 1 है, राइट, और उनको और कर दिया, या उनको minterm की डेजिग्नेशन की फॉर्म में लिख दिया, या समेशन का साइन आ जाएगा. ठीक है, and then you write down the minterm numbers only, which are separated by commas. ठीक है. अच्छा, तो ये देखिए इसका सर्किट भी बन जाएगा आराम से. एक्स, ये आपके पास अगर 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जी, राइट, और आपके पास उनके कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल हैं, यू जस्ट पिक अप दोस लाइंस एंड एंड देम टुगेदर एंड यू गेट द मिनटर्म्स. और एंड में क्या कर देंगे, आपस में सम हो रहा है यानी और कर देंगे, यू विल गेट द फंक्शन. सो दैट्स द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स. इनका फायदा क्या है, जैसे अगर जैसे हमने एक बात की थी ना, रिकन्फिगरेबल कंप्यूटिंग की बात की थी, एफपीजीए की बात की थी, फील्ड प्रोग्रामेबल एरे होता है, उसमें मे भी ये जो सारे लिंक्स होंगे ये प्रोग्रामेबल होंगे. तो अगर ये फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करना है तो वो क्या करेगा, सिर्फ इन लिंक्स को वो इंटैक्ट रखेगा, बाकियों को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट. उससे ये एक पर्टिकुलर फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा. इट बिकम्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑन अ reconfigurable hardware like FPGA. ठीक है, और लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आराम से हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप देखेंगे इसकी अगर मैं इसको let's forget about these inverters, तो आप देखेंगे कौन सी कितने लेवल्स बनते हैं इसके, 2 levels होंगे. So a standard form you will see they are always 2 level implementation. So from implementation point of view, you see it's a 2-level implementation. Equally, everybody understand this? Okay, let's go further. A product of max term की एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में हमने क्या कहा कि हम जो प्रोडक्ट मैक्स टर्म्स पिक करेंगे, दैट इज एंडिंग टर्म्स, राइट, वेयर द फंक्शन इज 0. ये उल्टा है ना. So we'll pick up those max terms where the function is 0, right? Okay, and then ending together. So example ले लेते हैं जी, ये है, तो हम क्या करेंगे अब 1 नहीं पिक करने आप, क्योंकि max term में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो you pick up zeros where the function output is 0, right? And you write down the pick up the max terms, और वो max term क्या करेंगे आपस में प्रोडक्ट कर देंगे. तो मेरा जो F1 है वो अब क्या होगा, will look like this, product of max terms. बस आपने सिर्फ मिनटर्म और मैक्स टर्म की डेफिनेशन याद रखनी है, और ये भी देखना है कि अगर मैंने मैक्स टर्म में लिखना है इसको, तो जीरोस को पिक करना है और उनको प्रोडक्ट करना है. मैक्स टर्म्स सर्किट में तो इजी होता है, वैसे जबड़ा देखने से काफी मुश्किल है. यस सर, ये आगे चल के सिंपलीफाई हो जाएगा, लेकिन मैक्स टर्म के भी आप देखेंगे इसके फायदे हैं. ठीक है, और फिर हम मैक्स टर्म को मिन टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म हो तो दूसरी फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं. सी ऑल दैट. अभी इम्प्लीमेंटेशन के हम उस सेंस में नहीं बात कर रहे, हम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, वन इज सम ऑफ मिन टर्म्स, अनदर इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स. ठीक है. अच्छा, इसको मैं इस तरह इसकी डेजिग्नेशंस लिख लूं तो फिर भी हो सकता है with capital M. Remember that the max term are with capital M. तो ये M1, M2, M5, M6 and M7. तो ये जरा थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने. उधर तो डायरेक्ट कोरिलेशन था बाइनरी के साथ 0 और 1 का. ठीक है, जहाँ प्राइम था वहाँ 0 था, जहाँ 1 था वो आप देख सकते हैं कि 1 0 0 1 आप मिन टर्म्स आराम से निकाल देंगे. ये उल्टा है. So basically if you see X prime or Y prime or U prime is like a 1 1 1. Right? So M7, ये थोड़ा सा आपने दोनों को डिस्टिंग्विश करना है बड़े इजीली, एंड यू कैन राइट डाउन दी मैक्स टर्म नंबर्स, राइट. और इसको दूसरी फॉर्म में, जैसे वो पहले हमने लिखा था समेशन फॉर्म में, अब क्या आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में. तो पाई का निशान आ जाएगा और प्रोडक्ट का निशान आ जाएगा, और फिर यू जस्ट राइट डाउन दी नंबर्स इन दैट. सर जी, यहाँ पे हम जीरोस वाली मैक्स टर्म्स को राइट करते हैं. जी, क्योंकि मैक्स टर्म बेसिकली
बेसिकली हमने ये देखा ना कि मैक्स टर्म इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म। तो अगर फंक्शन 1 हो रहा है उन टर्म्स पे एंड टर्म्स पे, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर टर्म जो है वो 1 प्रोड्यूस कर रही है। दैट्स व्हाई द फंक्शन इज 1। एनी टर्म गेटिंग 1 इज 1, राइट? लेकिन ये जो टर्म है ये बेसिकली 0 प्रोड्यूस कर रही है। इफ एनीथिंग, if I have this combination which is producing 0, the whole term gets 0. That's how we define the max term, which is the version of that. So ये product इसलिए ले रहे हैं, any term, any max term getting a 0, तो वो हमने देखे आउटपुट के मुताबिक ही लिखी। जहाँ 0 थे फंक्शन उनको प्रोडक्ट किए। Any combination coming here, देखिए ना, ये अगर कॉम्बिनेशन आ जाएगी तो कौन सी मैक्स टर्म 0 होगी? ये वाली। देखिए आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0 0 1, क्या होगा? 0 0 1 का प्राइम 0, तो ये टर्म 0 होगी। तो एनीथिंग एंडेड विद 0 इज 0। आउटपुट आपकी 0 आनी चाहिए। तो आपका ट्रूथ टेबल है वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो फंक्शन होता है वो हम उसमें नहीं लेते जो हमें 1 देगा। फंक्शन होता है, हाँ, ये 1 और 0 ही देगा। फंक्शन कैन गिव यू 1 और 0, राइट? तो हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि वेयर द फंक्शन इज गिविंग 0, अगर उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन डालेंगे तो ये सारी जो होंगी, कोई मतलब वैसे मैं ये डाल देता हूँ 0 0 0 डाल देता हूँ। अब इसमें डाले सामने क्या होगा? कोई एक टर्म आपको 1 दे देगी। एनीथिंग एंडेड विद 1 इज 1। हमें तो फाइनल आउटपुट देखनी है ना कि 1 है या 0 है। So that's the logic. Very good question, I think. You have asked why we are writing this. Yeah. Because this form basically represents the function as a product of zeros, a product of max terms. Where the function, that's why we pick up those max terms where the function was 0. So good. ठीक है जी, अब क्लियर हो गया? Product of max term, ये तो हो गया ना? ठीक है। So min term and max term clear हो गया जी? We can write down all the possible combinations. इधर कलर इतने मजे के नहीं आ रहे, इधर रेड है, ये ऑरेंज कलर है, इधर मेरे ख्याल में येलो आ रहा है। So you can see how my min terms are defined, how my max terms are defined, and then I'm adding these min terms and I'm taking a product of max terms. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं, ये दोबारा एक और एग्जांपल आ गई। हाउ वी गेट द फंक्शन सम ऑफ मिन टर्म्स। क्या करेंगे जी? क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? क्वेश्चन यही है, फंक्शन हमने लिखना है सम ऑफ मिन टर्म्स में। सर हम वो जो M6 अगर हम इसके ऊपर इन्वर्टेड लगा, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं सॉरी, दिस इज डिफरेंट। इसमें आपको फंक्शन गिवन है, the function is given to you and you are required to write the function in sum of min terms, standard form में लिखना है। यानी ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो इससे आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन आपको दिया है तो कैन यू मेक अ ट्रूथ टेबल? कहाँ पे ये 1 होगा? कैन यू टेल मी वेयर दिस फंक्शन इज 1? ए जब ए 0 होगा तो ये ए प्राइम 1 हो जाएगा ना, और बी 1 होगा, यानी ए 0 हो और बी 1 हो, तो ये वाली टर्म जो पहली टर्म 1 होती है। तो देखें ए 0 और बी 1 किधर है? 0 1 कहाँ आ रहा है? ये देखें, यहाँ पे फंक्शन 1 है, यहाँ पे फंक्शन 1 है। ठीक है, इस टर्म की वजह से। और सेकंड क्या है? बी प्राइम। बी प्राइम का मतलब द फंक्शन इज बी इज 0, जहां भी फंक्शन 0 आ रहा है उधर भी, ये जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ ऑलरेडी कवर्ड है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये भी 1 आ गया। और लास्ट में क्या है? c इक्वल टू 1, c 1 है, c 1 है, ये भी कवर हो गया। ठीक है, यहाँ c। सो दैट्स हाउ वी हैव रिटन ऑल द वंस देयर, राइट, रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन मैप्ड इनटू द ट्रूथ टेबल। So once the function is mapped into the truth table, now we can write down the sum of min terms form. वो already covered है। एक कॉम्बिनेशन
कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी तो 0 1 है, 0 1 0 1 A prime B 0 1 ये 1 0 ट्रांसफर सर A कॉम्प्लीमेंट 0 और B 1 ये 0 ही होना चाहिए। नहीं सर A prime B तो 0 1 है ना, सर 1 हो गया सॉरी अब मैं इसको गलत देख लिया था, जैसे कि 0 1 तो ये 0 1 ऑलरेडी ये भी है पाइवट, तो A और आपने B को देखना 0 1 इज देयर, राइट। ये भी देखे ना, ये मैंने कहा था A जहां 0 होगा B 1 होगा, तो ये दो टर्म्स हैं जहां ये यहाँ फंक्शन 1 हो रहा है, सो दैट्स ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है जी। और बाकी जगह एक ही जगह बचती है जहाँ फंक्शन 0 है, बाकी हर जगह फंक्शन 1 है। तो नाउ वी कैन राइट डाउन द सम ऑफ मिन टर्म्स, तो कैसे लिखेंगे? सर और ये सारी जो मिन टर्म्स हैं उनको और कर दें, सम ऑफ मिन टर्म्स हो जाए। वैसे अगर हम वो करें 6 नॉट लिखें तब भी सही नहीं। हाँ, अभी देखते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी जा सकते हैं। आप प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म ले लें, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म हमें लिखना आसान है बिकॉज एक ही मैक्स टर्म है, सो यू कैन गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। सो राइट, सो वी राइट ऑल द मिन टर्म्स विद द फंक्शन इज 1, राइट। सो और इसकी डेजिग्नेशंस लिख लेंगे तो ये बन जाएंगी, राइट। और इनको समेशन फॉर्म में लिख देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉर्मली वी राइट डाउन f and then we write down how many variables, a b c, 3 variables. तो आपकी मिन टर्म्स कहाँ तक जाएंगी? 0 से 7 तक जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको वेरिएबल्स भी मेंशन करना जरूरी होता है समटाइम, ठीक। और देन यू राइट डाउन व्हाटएवर, सो वी नो दैट 0 1 2 3 4 5 6 पे सिर्फ 0 है, 6 नहीं है, बाकी 5 और 7, बिकॉज 6 पे हमारा फंक्शन 0 है, बाकी पे 1 है, तो बाकी जो मिन टर्म्स होंगी उनका सम आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, इसकी भी एग्जांपल आ गई थी। इसमें भी क्या करेंगे, जीरोस पिक कर लेंगे, राइट, वी राइट डाउन द जीरोस और ये इस तरह कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इजी। अच्छा, अब देख लेते हैं कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जाना, ठीक है। ड्युअलिटी है या कॉम्प्लीमेंट है। So sum of min term, अच्छा, the function represented as sum of min terms can be represented as product of max term of the remaining terms. तो हम ये देखेंगे कि अगर min terms की फॉर्म में है, जैसे अपने लास्ट एग्जांपल में देखा, उसको मैक्स टर्म में लिखना है तो जो मिसिंग टर्म थी उसको मैक्स टर्म में लिखना है, वहां फंक्शन 0 है, सो रिमेनिंग टर्म्स को लिखेंगे। और जैसे ये उन्होंने एग्जांपल दे दी कि अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो ये है 0 3 4 और इसमें जहाँ 1 2 3 है तो ये सम ऑफ मिन टर्म, ठीक है। अगर इसको मैंने मैक्स टर्म में लिखना है तो क्या होगा, मैक्स टर्म में इसका, और ये देखें उसी फंक्शन का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो मैक्स टर्म आ गई जो कि मिसिंग थी उसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो बेसिकली इसीलिए वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो f था, ठीक है, उसमें 0 3 4 था, जब हम उसको कॉम्प्लीमेंट किया पूरे फंक्शन को और उसको मैक्स टर्म की फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश की, तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या चीज आ गई, मिसिंग टर्म्स। प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होगा, जाहिर है यहाँ पे फंक्शन 1 है, 0 3 और 4 मिड टर्म पे फंक्शन 1 है, तो बाकी रिमेनिंग पे क्या होगा 0, तो रिमेनिंग में प्रोडक्ट फॉर्म में क्या आ गई, रिमेनिंग मैक्स टर्म, ठीक है। सो यू कैन, अगर सिंपली मुझे सम ऑफ मिन टर्म्स में दिया हुआ है तो आई कैन ऑलवेज राइट डाउन द अदर फंक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन आप बता सकते हैं मुझे इसका, सॉरी ये लेफ्ट राइट था, ये लेफ्ट राइट, फिर उसी को उन्होंने पूछ दिया, ठीक है। सो
ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल गया कि मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें मैक्स टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे ये 034 था, तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में इसको कैसे लिखेंगे, जो मिसिंग टर्म है। और इंपॉर्टेंट ये है, दैट्स व्हाई वी सेड द इनपुट वेरिएबल्स हैव टू बी नोन टू अस। अगर ये ए बी सी थे तो वो 0 से 7 तक मैक्सिमम मिन टर्म्स आपकी जाएंगी। ठीक है, अगर वो 4 वेरिएबल होता तो फिर 0 से 15 तक आपकी मिन टर्म होती, फिर आपने मिसिंग टर्म वो सारी कंप्लीट करनी। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा अब देख लेते हैं कि एक फॉर्म मिल रही है तो उसके थ्रू फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स सपोज द गिवन इज इन द सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म। ठीक है, एफ आपका किस में दिया हुआ है, मिन टर्म्स की फॉर्म में दिया हुआ है। यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। सिंप्लीफाइड फंक्शन नहीं है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें सम ऑफ मिन टर्म्स में आपने लिखा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लीफाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका जो सर्किट बनाएंगे वो एक हैवी सर्किट बनेगा। ठीक है, लेकिन उसके अलग एडवांटेजेस हैं, मिनिमाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा हमें, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीके से फंक्शन को लिखने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब आपके पास गिवन क्या है, योर फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म। एफ आपका जो है वो किस फॉर्म में है, सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म में। लेट्स से 0 3 4, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 0 3 4 ये गिवन है आपको, दिस इज गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू राइट द फंक्शन इन मैक्स टर्म्स। कैन यू राइट? तो जो मिसिंग टर्म्स होंगी वो आप लिख देंगे। सो मैक्स टर्म नंबर्स आर दोज नंबर नॉट ऑन द मिन टर्म लिस्ट, राइट। तो ये क्या बन जाएगा मैक्स टर्म में, इस फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये एफ विल बी प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मिसिंग टर्म इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 ऑलरेडी देयर, 1 2 3 is already there, 4 is there, then 5 6 and 7, and we know this. Let's suppose it was a function of ABC, 3 वेरिएबल थे इसमें। ठीक है, तो वी नो कि जो मिन टर्म्स मेरी हैं वो 0 से 7 तक जाएंगी मैक्सिमम। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसी फंक्शन, ये एफ था, एफ प्राइम में मैंने इसको मिन टर्म में लिखना है, इसको एफ प्राइम में लिखना है। अब मैंने एफ प्राइम में, लेकिन लिखना सम ऑफ मिन टर्म्स में है, तो क्या होंगी आपके ख्याल में? जो मिसिंग होगी वही बेसिकली मिन टर्म में होंगी। ठीक है, तो ये वही वाले आ जाएंगे 1 2 5 6 and 7। ठीक है, ये एफ प्राइम की बात करें। जी, ये मिन टर्म में है ना, जहां फंक्शन 1 है। और एफ प्राइम क्या होता है, जहां फंक्शन 0 होता है। तो ये ऐसी मिन टर्म है जहां फंक्शन 0 है, तो वही वाली जो मिसिंग टर्म्स होंगी वही फंक्शन 0 होगा ना। एफ प्राइम इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रू फंक्शन। एफ प्राइम क्या होगा, जहां फंक्शन 0 है बेसिकली, और वो कहां होगा, जो मिसिंग टर्म है वही फंक्शन 0 होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म में एफ प्राइम कैसा होगा, एफ प्राइम प्रोडक्ट फॉर्म में कैसा होगा जी? जीरो 034 का प्रोडक्ट, जी एफ प्राइम लिख रहे हैं। हाँ, जो मिसिंग टर्म्स होंगी वहां फंक्शन 0 होगा, और एफ प्राइम को ही रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली ये वाली मिसिंग टर्म्स दी आ जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह अगर ये उल्टा दिया हुआ है, मैक्स टर्म में है, तो ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं क्विकली, सी द एग्जांपल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये फंक्शन आपको दिया हुआ था। ठीक है, अगर ट्रू फंक्शन लिखना है और सम ऑफ मिन टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में लिखना है तो मिसिंग टर्म्स आ जाएंगी। अगर उसी का एफ प्राइम लिखना है लेकिन मिन टर्म में लिखना है, ठीक है, तो फिर भी उसकी मिसिंग टर्म्स आएगी। और अगर एफ प्राइम को लिखना है और मैक्स टर्म में लिखना है तो फिर वही वाली जो टर्म है जो इस फंक्शन की है, जहां फंक्शन 1 था, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई।
गॉट द आइडिया? और अगर उल्टा किया हुआ है, यहाँ ये क्या है, बेसिकली वेयर द फंक्शन इज जीरो, इसको मिन टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, मिसिंग टर्म लिखेंगे, वेयर द फंक्शन इज 1. बेसिक डेफिनेशन आपने भी बोली, मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट डाउन सम ऑफ मिन टर्म्स वेयर द फंक्शन इज 1, राइट? या अगर आपको मुश्किल हो रही है ऐसे, तो आप क्या करें, एक ट्रूथ टेबल बना लें और एक एफ प्राइम बना लें, ठीक है? जहां एफ प्राइम 1 आ रहा है उसकी मिन टर्म्स को ऐड कर दें, और जहां एफ प्राइम 0 आ रहा है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में, यू कैन डू द वाइस वर्सा. ठीक हो गया. आज मेरा ख्याल है हम इक्वल स्पीड पे गए और वी हैव लर्न अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें अभी. ठीक है जी, सो यू हैव अंडरस्टूड फिलॉसफी, और फिर आगे चल के हम देखेंगे और भी फॉर्म्स होंगी. जी बेटा. ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं कि इसी क्या है, और लेते हैं आपको डायरेक्ट बता दें. अगर फंक्शन दिया हुआ है आपको, उसको अगर मैक्सिमम भी करना है तो बेसिक टर्म्स, और अगर एफ प्राइम को देखना है तो आप एफ प्राइम भी डायरेक्ट लिख सकते हो, उसको फॉर्म में डालते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आराम से कन्वर्ट करें. और समटाइम हम देखेंगे कि एफ प्राइम को इम्प्लीमेंट करने में हमें ज़्यादा इजी रहेगा, फॉर्म में लिख देंगे तो हमने ये चारों पॉसिबल ways of writing so all those people who are missing, I think they could have listened to these lectures.